Hello everyone, this is Anchal Sharma and I welcome you all to Gyan Sagar Institute. I'm here in front of you all to inform that we are going to commence a new batch for RMS Asanic and RIMC. All those who are interested to send their wards to any of these schools or institutes may watch this full video. This is an informational video for you all. Here in this video, I'm only going to discuss about Rashtriya Military Schools, and in upcoming videos, I'll be definitely covering SANIC as well as RAMC. So let's start with the first slide. So before starting or going to the deep information, let us know what is the objective of these schools. So guys, firstly, these are category A military training schools which are administered by the Ministry of Defense, means they are under Ministry of Defense. The objective of these institutes or these schools is to prepare a cadet for NDA or any other defense academy. मतलब अगर बच्चा एनडीए के लिए जाना चाहता है या कोई भी अदर डिफेंस एकेडमी के लिए जाना चाहता है तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस. Here I have mentioned the location of these schools. So you can see one of these 5 schools is in Himachal Pradesh, 2 are in Rajasthan and 2 are in Karnataka. Only these many schools are there under RMS. Let's move ahead. Who all are eligible to apply for RMS? So, see, you can go for 2 different classes, class 6th and class 9th. For class 6th, the age limit of the candidate should be 10 to 12. It should be between 10 and 12. When? As of March 31 of the admission year. मतलब अगर एडमिशन ईयर 26 है तो 31 मार्च 26 से पहले पहले या तक उसकी एज 10 से 12 के बीच में होनी चाहिए फॉर क्लास 6. So you can go through your DOB. For class 9 it should be 13 to 15. For class 6 the qualification, necessary qualification is either past class 5th और स्टडिंग इन क्लास 5th. मीन्स अगर बच्चा फॉर एग्जाम्पल आपने 26 से 27 का टेस्ट देना है, 26 ऑफ दिसंबर का टेस्ट देना है, तो जो बच्चा इस टाइम 5th में है, लाइक 5th में एडमिशन हुआ है, उसका 5th क्लास चल रहा होगा, तो वो बच्चा भी उसमें अप्लाई कर सकता है और जिसने 5th कर ली है वो भी उसके लिए एलिजिबल है अगर एज लिमिट के बिटवीन बच्चा आता है तो. ठीक है. प्रूफ डॉक्यूमेंट्स में डेट ऑफ बर्थ is mandatory. For 9th class also, same type of logic goes that the one who has passed 8th or studying in class 8th, both of these candidates can apply. And the proof documents is date of birth certificate and school transfer certificate is mandatory for the kid. ठीक है. Next one. What is the selection process? See, Stage 1 is common entrance test. For RMS, this test is mainly taken in December, like 1st or 2nd Sunday of December. This is a common entrance test. OMR based paper होता है, objective paper होता है. पहले इस टेस्ट को बच्चे को देना पड़ता है. Yes, it is called a biggest hurdle क्योंकि it is a kind of कॉम्पिटेटिव पेपर फॉर अ किड, तो थोड़ा सा प्रिपरेशन उस लेवल पे होनी चाहिए. थाउजेंड्स अप्लाई फॉर अ फ्यू हंड्रेड सीट्स. बहुत सारे बच्चे अप्लाई करते हैं और सीट्स कुछ हंड्रेड्स में होती हैं. ठीक है. दैट्स व्हाई इट इज अ हर्डल. इफ अ कैंडिडेट इज गोइंग टू क्लियर दिस पेपर, ये अगर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट उसका क्लियर हो जाता है तो फिर वो स्टेज 2 के लिए जाता है विच इज नोन एज द इंटरव्यू स्टेज. इंटरव्यू स्टेज में उसकी कॉन्फिडेंस, उसकी पर्सनालिटी, उसकी इंटेलिजेंस लेवल जो है वो टेस्ट होता है लाइक इन अ फॉर्म ऑफ इंटरव्यू ओनली. फॉर क्लास 6 it is of 20 marks. For class 9 it is of 50 marks. Means this interview is of 50 marks for class 9th kid, and for the kid of class 6 it is of 20 marks. Now the third stage after the interview is the medical examination,
विच इज कंडक्टेड एट मिलिट्री हॉस्पिटल्स. मींस जो बच्चा ये 2 स्टेजेस कवर कर जाता है उसके लिए ये 3rd मेडिकल एग्जामिनेशन कंपल्सरी होता है. कैंडिडेट्स मस्ट बी फिजिकली फिट अकॉर्डिंग टू मिलिट्री स्टैंडर्ड्स. उनका कुछ एक लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड्स हैं, आपको वो फुलफिल करने पड़ेंगे, लाइक विजन, हेयरिंग, फ्लैट फुट, नॉक नीज एटसेट्रा. ये हम विद इन अ सिस्टम, मतलब सिस्टम में पढ़ के आपको ये चीजें समझ आ जाएंगी. ठीक है. नेक्स्ट, दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट. जो अभी मैंने डिस्कस किया था, जो पहला पढ़ाव है स्कूल को ज्वाइन करने का, वो है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट. ठीक है. तो 6th क्लास के बच्चे के लिए जो ये टेस्ट का स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है. सो गाइस, जो लेवल है तैयारी का वो है 5th स्टैंडर्ड का. ठीक है. तो हमें 5th स्टैंडर्ड 6 जिसको 6th में जाना है उसे 5th लेवल की तैयारी करवानी है. टोटल मार्क्स, जितने मार्क्स का पेपर आता है दैट इज 200 मार्क्स. नेचर ऑफ द पेपर आई ऑलरेडी टोल्ड यू, एमसीक्यू बेस्ड ऑब्जेक्टिव पेपर आता है. इस पेपर में 4 सब्जेक्ट है, इंग्लिश, इंटेलिजेंस, मैथमेटिक्स एंड जीके. जीके में करंट अफेयर्स भी इंक्लूड होता है. ठीक है. जो इंग्लिश है, इंग्लिश इज क्वालिफाइंग, मींस अ कैंडिडेट हैज टू गेट 35% ऑफ द टोटल मार्क्स. ठीक है. राउंड अबाउट 17.5 18 इतने मार्क्स इसको चाहिए हैं. अगर ये इंग्लिश का पेपर क्वालिफाई हो जाता है देन हिज फर्दर 3 सब्जेक्ट्स विल बी कैलकुलेटेड और मार्क्ड. ये तब ही आपके चेक होंगे अगर आपका इंग्लिश का पेपर जो है वो क्वालिफाई हो जाता है. ठीक है. की फोकस बच्चे का मैथ्स और इंटेलिजेंस रहेगा टू फेच गुड मार्क्स. बट यस, इंग्लिश को आप भूल नहीं सकते हो. अगर इंग्लिश ही ठीक नहीं है तो आप आगे का पेपर कैसे चेक करवाओगे. ठीक है. सो द वेटेज ऑफ इंग्लिश 50, इंटेलिजेंस 50, मैथमेटिक्स 50, जीके एंड करंट अफेयर्स 50. ठीक है. तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके सामने है, दिस इज 200. टोटल मार्क्स 200. सो दिस इज ऑल अबाउट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट. ये जो टेस्ट है ये कंडक्ट कैसे होता है. ठीक है. नेक्स्ट वन इज, दिस इज अ स्ट्रक्चर फॉर क्लास 9th. क्लास 9th के लिए ऑब्वियसली जो बच्चा प्रिपेयर कर रहा है वो 8th स्टैंडर्ड का प्रिपेयर करेगा. 8th लेवल का पेपर उसे 9th के एंट्रेंस टेस्ट के लिए आ रहा है. ठीक है. अगेन सेम, टोटल मार्क्स 200. नेचर ऑफ द टेस्ट इज ऑब्जेक्टिव, एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट होगा. ठीक है. पेपर 1 में इंग्लिश, हिंदी एंड सोशल साइंस. इंग्लिश, हिंदी एंड सोशल साइंस ये मिला के आपके 100 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से 50% ऑफ दिस इज पासिंग मार्क्स. उसके ऊपर तो बनेगी रैंक. ठीक है. नेक्स्ट, मैथ्स और साइंस अगेन 100 मार्क्स के, 50% मिनिमम मार्क्स हैं. 50% इज मिनिमम पासिंग मार्क्स. इसके ऊपर चाहिए हमें रैंक लेने के लिए और अपनी सीट कंफर्म करने के लिए. ठीक है. मार्क्स फ्रॉम बोथ पेपर्स आर काउंटेड फॉर द फाइनल मेरिट लिस्ट. तो दोनों के दोनों, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही इंपॉर्टेंट है जो क्यूमुलेटिव फाइनल लिस्ट बनेगी मार्क्स की. ठीक है. इट डजंट मीन कि 50% आ गए और आपकी सीट सिक्योर होगी, नहीं. इसके ऊपर भी मेरिट आउट हो सकते हैं, मतलब मेरिट बनेगी और आप उस रेंज में आते हो नहीं आते हो, दैट डिपेंड्स ऑन योर मार्क्स. नेक्स्ट इज, ओके, these are the important dates. So this date is for, this calendar is for 26 to 27. So on the basis of this calendar I'll be clearing you the expected dates of next session. Just imagine if today I am going to discuss the academic session of 2027 to 2028. ठीक है. This is a tentative timeline. You would be expecting your paper in August 2026. मतलब आने वाला है in next 4 to 5 months. अगस्त 2026 में आप अपनी नोटिफिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हो. सितंबर से अक्टूबर 26 में आपकी विंडो ओपन होगी, जिसमें आपको लाइक विंडो मीन्स मतलब ये नोटिफिकेशन आ जाएगी कि आप फॉर्म भर सकते हो. दैट विल बी समवेयर अराउंड बिटवीन सितंबर एंड अक्टूबर. नेक्स्ट, इन नवंबर 2025 एडमिट कार्ड्स विल बी रिलीज्ड. क्यों? क्योंकि दिसंबर में पेपर होता है. ठीक है. तो समवेयर इन लास्ट 15 डेज एडमिट कार्ड्स जो है वो रिलीज हो जाते हैं. इन दिसंबर 2026,
November 2026 है ना. So in December 2026 your test will be conducted, usually second, third or first Sunday maybe. So this may change. Okay, this is not hard and fast rule, this may change, but yes, it is generally conducted in December. ठीक है. आप अपने रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो जनवरी, फेब्रुअरी, इन द 2 months in between रिजल्ट्स जो हैं वो आउट हो जाते हैं. ठीक है. एंड those who comes in between the cut off or like जो बच्चे कट ऑफ क्लियर कर जाते हैं वो बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है समवेयर अराउंड फेब मार्च 2027 में बुलाया जाए. दिस इज अगेन जैन फेब 2026. आई होप दिस इज क्लियर. अगस्त से लेकर सिस्टम हमारा स्टार्ट हो जाएगा और नेक्स्ट जैन फेब एंड दिस मार्च ऑफ 2027 तक बच्चा हमारा फाइनली इन हो जाता है किसी भी स्कूल में. दिस इज द एकेडमिक कैलेंडर. ठीक है. नेक्स्ट वन इज this is the just a glimpse of the highlights of the syllabus. What is it? कि अगर हम 6th की बात करते हैं तो आई थिंक बच्चा देख के ये समझ सकता है कि जो उसने अभी तक पढ़ा है 4th 5th में जो पढ़ा होता है वही सिलेबस है. नंबर सिस्टम, एलसीएम, फ्रैक्शन, डेसिमल्स ऑलरेडी बच्चे ने किए होते हैं. इंटेलिजेंस में, जीके में ऑलरेडी लाइक वी आर सीइंग कि जो बच्चा है वो ऑलरेडी गो थ्रू होता है इन चैप्टर से, तो देयर इज नथिंग लाइक न्यू टू हिम और हर. ठीक है. और 9th का सिलेबस भी जो बच्चे का ऑलरेडी सिलेबस मेंशन्ड होता है स्कूल लेवल पे, उसी सिलेबस को हमने किसी और तरीके से इन एमसीक्यू फॉर्म और थोड़ा सा और एडिफाई करके उसे पढ़ाना होता है. ठीक है. सो दिस इज द स्टैंडर्ड ऑफ द पेपर. नेक्स्ट वन, कुछ रिजर्वेशन पॉलिसी भी होती है. तो ऑल दोज लाइक द पेरेंटल कैटेगरी स्प्लिट क्या बोलती है कि जो जेसीयूज या ओआरएस के वार्ड हैं, लाइक जो जेसीयू है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सर्विंग या रिटायर्ड जो भी, उनके लिए 70% सीट्स जो हैं वो ऑलरेडी रिजर्व्ड हैं एंड 30% सीट्स फॉर द वार्ड्स ऑफ ऑफिसर्स एंड सिविलियंस, मतलब अगेन ऑफिसर्स इन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स. ठीक है. टोटल नंबर ऑफ सीट्स में से मैक्सिमम 30 और द 10% ऑफ द टोटल हैज टू गो टू अ गर्ल चाइल्ड. Secondly, those whose parents have been killed in action in duty, for them also 50 seats are already reserved. So this is just a reservation criteria. Next one is, what are the important guidelines? So guys, कुछ चीजें इंपॉर्टेंटली समझना पेपर से पहले, पेपर को अप्रोच करने से पहले इंपॉर्टेंट है. दैट इज जो एग्जाम का मीडियम है, मतलब जो एग्जाम आपको आता है, आपको क्वेश्चन पेपर आपके सामने आता है, वो इंग्लिश में भी होता है, हिंदी में भी होता है, बट द स्कूल करिकुलम इज स्ट्रिक्टली इंग्लिश मीडियम. लेकिन जो स्कूल है वो करिकुलम टोटली इंग्लिश मीडियम रहेगा. सेकेंडली, प्रोफिशिएंसी इज वाइटल. वाइटल मीन्स असेंशियल. नेक्स्ट, आप मेडिकली क्वालिफाइड होने चाहिए. मेडिकली फिटनेस इज रिक्वायर्ड, मतलब आपको कोई कलर ब्लाइंडनेस या डेंटल इश्यूज पहले से नहीं होने चाहिए. थर्ड, जो हमारा पेपर है उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती. आप सारे के सारे पेपर जो क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हो. नेक्स्ट इज ओनली ऑनलाइन वाया द ऑफिशियल वेबसाइट. जो एप्लीकेशन है, जो हमने नोटिफिकेशन जो हमें आएगा और जो एप्लीकेशन हमने भरनी है, अप्लाई करना है, वो हम सिर्फ ऑनलाइन ही भर सकते हैं थ्रू राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स .edu.in. सो गाइज, ये इंफॉर्मेशन बिफोर हैंड मीन्स जब भी हमने बच्चे की तैयारी शुरू करवानी है, करने से पहले हमें ये चीजें पता होना बहुत जरूरी है, सो दैट कि हमारा अटेम्प्ट की जो प्रोबेबिलिटी है वो सक्सेस होने की बढ़ जाए. ठीक है. सो गाइज, we are starting a new batch, right? That is from 23rd of March. Just a second. We are starting this batch from 23rd of March 2027. ठीक है. We have two types of batches. हम दो टाइप के बच्चों का इनटेक लेंगे. One is only evening batch, means
जो बच्चा स्कूल के बाद हमारे पास पढ़ना चाहता है वो हमारे पास इवनिंग बैच में आ सकता है. जो बच्चा फुल डे बोर्डिंग फुल डे हमारे पास रहना चाहता है, फॉर एग्जाम्पल डमी स्कूल एडमिशंस एंड 10 to 4 they want कि child has to be in institute preparing for the course, तो 10 to 4 PM तक बच्चा हमारे पास प्रिपरेशन करेगा. अदरवाइज इट वुड बी 3:30 to 6:30 or whatever depending on your school timings. Means round about इस टाइम जोन में बच्चा जो है हमारे पास रहता है. तो वी हैव 2 type of batches. Okay, sorry guys, this is 2026 obviously. 2026 ठीक है, क्योंकि 2027 मैंने अगला टाइम दे दिया आपको नेक्स्ट ईयर का. दिस इज 2026. So these are the 2 batches we are going to start with. For any further information, I have already given the contact number of the institute. This is the contact. This is the first contact. This is the second phone number. You can call any time to fetch any type of information. This is our address, guys. You can come and go through anything you want to. I hope this information is really beneficial for you people, and all the best for the preparation. Thank you.